A very good evening everyone. In my today's video, I try to bring your attention towards a very crucial topic related with bank, that is bank privatization. I try to bring your attention towards nationalization to privatization. Means in my video, I try to focus on all the aspects, all the things that is being discussed at the time of nationalization of bank, as well as I try to focus on all the things that is being discussed now today onwards, that is related with privatization of banks. We all know that the government is taking decision regarding nationalization of bank in the year 1969. Our Honorable Prime Minister Indira Gandhi ma'am had taken the decision related with nationalization of bank. She has given a lot of things, a lot of reasons behind the nationalization of banks. In today also, our current Prime Minister Honorable Narendra Modi sir had given a lot of reasons regarding the privatization of banks. Our finance minister had also clarified the concept privatization in today's era, as well as in that time also the things that is being related with nationalization is being clarified by the finance minister at that time. I try to bring all the things at the same platform, and please write in comment the things related with nationalization and privatization, which is best and why. Please watch my video till end to understand the two things at the same platform, and if you like the contents, please subscribe my channel for more such videos. We will move to next, that is reasons of nationalization and privatization. First of all, we will discuss the reasons of nationalization. The government has given a lot of reasons for nationalizing the bank, because the government thought that the private banks are simply doing all the activities for their lenders, means दे आर प्रोवाइडिंग मोर बेनिफिट्स टू द लेंडर्स. प्राइवेट जो भी बैंक्स थे वो अपने मालिक के लिए काम कर रहे थे, अपने मालिक के हित में काम कर रहे थे, उनके प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे. गवर्नमेंट ये चाहती थी कि बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया जाए, ताकि नेशनलाइज बैंक्स हो जाएंगे तो वो पब्लिक हित में काम करेंगे और देश के डेवलपमेंट में अपना सपोर्ट करेंगे. इसी के साथ कुछ पॉइंट्स को क्लैरिफाई करके दिया गया था, और उसके बाद ही in the year 1969 14 major banks are being nationalized. We will discuss all the points one by one. First one is control of huge resources. चूँकि अगर बैंक एक ऐसी एंटिटी है जिस पे बहुत सारे मेजर रिसोर्सेज का कंट्रोल होता है, इफ़ that control is in the hand of private sector, then definitely it is not working according to government. इस रीजन्स के साथ बैंक को प्राइवेटाइज से हटा करके नेशनलाइज करने का डिसीजन लिया गया था. सेकेंड वन इज़ अटेंशन टू प्रायोरिटी सेक्टर. बेसिकली हमारे कंट्री में जो गवर्नमेंट का ये ओपिनियन था कि जो भी प्राइवेट बैंक्स हैं वो सिर्फ उसी सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि बैंक के मालिक को फ़ायदा पहुंचा रहा है. मीन्स द पोर्शन दैट इज़ बीइंग सपोर्ट बाय बैंक्स इज़ ओनली दोज पोर्शंस दैट गिव्स मोर बेनिफिट टू द ओनर ऑफ द बैंक्स. उस पॉइंट को, उन सेक्टर्स को कंसिडर नहीं किया जा रहा था जो कि प्रायोरिटी सेक्टर है और जिनकी डेवलपमेंट की ज़रूरत है. उन्हीं के डेवलपमेंट से देश की उन्नति होगी, देश की आम जनता को उससे फ़ायदा होगा. थर्ड वन है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़. चूँकि बैंक्स की जो ब्रांचेस थी वो लिमिटेड थी, रूरल एरियाज़ में नहीं थी, वो ऐसे एरियाज़ में थी जहाँ पे गांव के लोगों का पहुँचना थोड़ा मुश्किल था. जनरली शहर में ब्रांचेस होती थी, कम ब्रांचेस थी, तो इसके कारण जो भी बैकवर्ड एरियाज़ थे उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था. देन सेकेंड वन इज़, द थर्ड वन इज़ एफिशिएंसी आर्गूमेंट. एफिशिएंसी आर्गूमेंट वी ऑल्सो कंसिडर, गवर्नमेंट का ये मानना था कि चूँकि बैंक्स प्राइवेट हैंड में है तो वो उतना इफ़िशियंट नहीं है, उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए अगर वो गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे तो उनका वर्क बहुत अच्छा हो जाएगा. दे डेफिनेटली डू इफ़िशियंट, डेफिनेटली डू एक्टिव पार्टिसिपेशन. देन
यूनिफॉर्म बैंकिंग पॉलिसी, चूँकि बैंक्स जो हैं वो प्राइवेट हैंड में थे, तो एक कॉमन बैंकिंग पॉलिसी पूरे कंट्री में फॉलो नहीं हो पा रही थी। इसके कारण भी बैंक को नेशनलाइजेशन की तरफ ले जाना चाहिए। देन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लेंडर्स, सेविंग्स को मोबिलाइज किया जाए। सेविंग्स जो भी जिसके भी हैं, चूँकि जो लोग अगर बैंक नहीं पहुंच पा रहे तो डेफिनेटली वो अपनी सेविंग्स को बैंक में नहीं रख पा रहे थे, तो उसके कारण एक बहुत बड़ा जो सेविंग का पॉइंट था वो बैंक तक नहीं पहुंच पा रहा। तो इन सारी चीज़ों को भी कंसिडर किया गया था। देन एनकरेजिंग बैंकिंग हैबिट्स एंड क्रिएटिंग बैंकिंग हैबिटेट, बैंकिंग की लोगों के अंदर हैबिट नहीं थी। पीपल को ये लगता था कि हम बैंक में पैसा क्यों रखें, वहाँ तक जाके क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। दे यूज़ टू कीप देयर मनी विद दैम, और जब उनको यूज़ होता था दे यूज़ दैट मनी। तो इसके कारण चूँकि फंड्स जो है वो फ्लो में नहीं आ रहे थे, तो फंड्स का प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। तो गवर्नमेंट ये चाहती थी कि चूँकि अगर लोग बैंक तक आएंगे, अपनी सेविंग्स को बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो उन फंड्स का प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन होगा और उससे डेफिनेटली कहीं ना कहीं देश को बेनिफिट होगा। इसके कारण एक बैंकिंग हैबिटेट मीन्स बैंकिंग का चलन जो है वो मार्केट में गवर्नमेंट लाना चाह रही थी। देन स्पीडी ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स का भी स्पीडी ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाएगा अगर उनकी ब्रांचेज, उनका स्प्रेड बहुत अच्छा हो जाएगा। देन अगमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डेफिनेटली गवर्नमेंट ये चाहती थी कि चूँकि ब्रांचेस बढ़ेंगी तो जॉब्स बढ़ेंगी, जॉब ऑप्शंस बढ़ेंगे, तो लोग बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए इन द ईयर 1969 the government is taking decision regarding nationalization of banks, and 14 banks are being successfully nationalized at that time. Now we will discuss the reasons given by our present government related with privatization. The first one is degrading फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पब्लिक सेक्टर्स। गवर्नमेंट का ये कहना है कि चूँकि पब्लिक सेक्टर्स में बहुत फंड्स डाल चुके हैं गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर को कंटिन्यूसली फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, स्टिल जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशंस इंप्रूव नहीं हो पा रही है। इसके कारण गवर्नमेंट उनका प्राइवेटाइज कर देना चाहती है ताकि गवर्नमेंट को एडिशनल फंड्स बैंक को ना देने पड़े। जो सेकेंड जो गवर्नमेंट ने रीज़न बताया है वो है पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन इज़ डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। ये इतना छोटा प्रोजेक्ट नहीं है कि इतना फास्ट, इतना फ्रीक्वेंटली डिसाइड किया जा सके या इतना फ्रीक्वेंटली इस पे एक्शंस लिए जा सके। देन स्ट्रेंथनिंग बैंक्स, गवर्नमेंट का ये भी ओपिनियन है कि अगर गवर्नमेंट प्राइवेट हैंड में अगर ये बैंक प्राइवेट हैंड में चले जाएंगे तो गवर्नमेंट को अपना फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं गवर्नमेंट के पास होगा, प्लस ये जो बैंक्स, जो भी PSU बैंक्स प्राइवेटाइज होंगे वो प्रॉफिटेबल बिजनेस करने लगेंगे, मतलब दे मूव ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। दिस इज द ऑल्सो ओपिनियन ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट। देन रिकमेंडेशंस ऑफ डिफरेंट कमिटीज़, अभी बहुत सारी कमिटीज़ ने भी रिकमेंड किया हुआ है कि बैंक्स को गवर्नमेंट के को अपने कुछ बैंक्स के जो भी शेयर्स गवर्नमेंट के पास हैं उसका कुछ परसेंट या जो है वो प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, कुछ परसेंट जो है वो नॉर्मल लेंडर्स को सेल आउट कर देना चाहिए। तो ये सारे बेसिस, ये सारे रीजंस हैं प्राइवेटाइजेशन के। अब आप ये देखिए कि नेशनलाइज क्यों किया गया था, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे जो है वो इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बैंकिंग का था जो कि हमारे हाथ में था किसी प्राइवेट लेंडर के, उस उद्देश्य से इसको नेशनलाइज किया गया था। अभी हम प्राइवेटाइज इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का रीज़न ये दिया जा रहा है कि चूँकि गवर्नमेंट को एडिशनल फंड्स देने पड़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट एडिशनल फंड दे रही है, दैट इज़ डेफिनेटली ट्रू एंड दैट इज़ वेरी मच इफेक्टिव ऑल्सो। बट गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए जो भी गवर्नमेंट एडेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं या जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, दैट इज़ ऑल्सो बीइंग फॉलोड बाय द नेशनलाइज्ड बैंक्स। वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो इन माई टूडेज वीडियो। PSU बैंक्स अभी के टाइम में बहुत अच्छा होल्ड रखती हैं। 66% का क्रेडिट जो भी है वो हमारे PSU बैंक्स के पास है, एज वेल एज 65.7% का डिपॉजिट हमारे PSU बैंक्स के पास है। दिस नेटवर्क कंटिन्यू टू बी यूज्ड बाय ईच सक्सेसिव गवर्नमेंट टू पुश बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। Schemes such as Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana and Pradhan Mantri Mudra Yojana implemented through PSU banks to increase penetration of bank deposit and low value credits. मीन्स जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, जो भी नई गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च करती है फॉर द सोशल वेलफेयर, फॉर
improving or for supporting the weaker section of the society, that all being transferred, that all being actually implemented by PSU banks. तो इसलिए हमारे पास PSU banks का होना ज़रूरी है to implement all those schemes as well as to develop the actual needy person of the country. जो हमारे कंट्री में जिनको फंड्स की एक्चुअल में ज़रूरत है उनके डेवलपमेंट के लिए भी PSU बैंक्स की रिक्वायरमेंट है. नाउ वी विल डिस्कस आउटकम ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स. क्योंकि जब बैंक्स का नेशनलाइजेशन हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, द मोनोपोली हैज़ केम टू एन एंड. क्योंकि जब बैंक का होल्ड, बैंक का जो भी मेजर डिसीजन, मेजर मैनेजमेंट डिसीजंस थे वो गवर्नमेंट के हाथ में आ गए तो मोनोपोली ख़त्म हो गई. मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल का पूरा जो भी डिसीजन था, जो भी ओपिनियन था, जो भी थॉट आउटपुट थे, वो सारी चीज़ें बैंकिंग से हट गए. देयर हैज़ ऑल्सो बीन अ रिडक्शन इन रीजनल इम्बैलेंस बाय सेटिंग अप बैंक्स इन रूरल एरियाज. रीजनल इम्बैलेंस दूर हो गए क्योंकि ब्रांचेस को सिर्फ शहरों की तरफ लिमिट करके ना रख के बल्कि उनका शिफ्ट रूरल एरियाज़ में भी किया गया और ब्रांच हमारे बैकवर्ड एरियाज़ में भी खोले गए ताकि हर एक पीपल को बैंकिंग की फैसिलिटी मिल सके. द सरप्लस प्रॉफिट कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड एंड देयर हैज़ बीन प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. जो बैंक का सरप्लस प्रॉफिट हुआ उसको यूटिलाइज किया गया और पब्लिक के इंटरेस्ट को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा गया. द वर्किंग कंडीशन ऑफ द बैंक्स आर ऑल्सो बीइंग इम्प्रूव्ड एंड विल डेफिनेटली bring at the better condition. Hence, the overall experience of nationalization has been quite beneficial for India and its economy. तो ओवरऑल जो आउटकम आया नेशनलाइजेशन का वो एक बहुत पॉजिटिव आया. मीन्स पूरे नेशन, पूरी इकोनॉमी का बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ. इकोनॉमी बहुत अच्छा यूटिलाइज करने लगी बैंकिंग सेक्टर को. द रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एट दैट टाइम वॉज पुअर. द कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर was also underdeveloped, which justified the need for a good public sector bank. Our Reddy sir had also said this statement. Means उस टाइम में, जिस टाइम में बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया था, उस समय प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी, उनकी कैपेसिटी का भी पूरा यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा था. इसके कारण ये डिसीज़न लिया गया कि बैंक्स का नेशनलाइजेशन होना चाहिए और नेशनलाइजेशन का आउटकम भी बहुत अच्छा, मतलब जो एक्सपेक्टेड था उतना या उससे थोड़ा अच्छा ही आया. नाउ वी विल डिस्कस द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक. अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि चूँकि अगर बैंक का प्राइवेटाइजेशन हुआ तो उसके बाद क्या आउटकम आएंगे, क्या आउटकम आने की पॉसिबिलिटी है. दीज आर टोटली बेस्ड ऑन अजम्पशंस. जॉब सिक्योरिटी विल बी गॉन. जॉब की सिक्योरिटी क्लियरली चली जाएगी जो कि नेशनलाइज बैंक्स में क्लियर कट होती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का सिंगल फोकस होता है कि जो भी बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उनको एक चांस दिया जाए अच्छा काम करने के लिए. स्टिल इफ़ दे आर नॉट डूइंग प्रॉपर वर्क, स्टिल दे आर नॉट गिविंग बेनिफिशियल रिजल्ट टू द एम्प्लॉयर, तो वो उनको बाहर किक आउट करते हैं. तो मतलब जॉब की सिक्योरिटी चली जाएगी. सैलरी माइट गो अप बट फॉर दोज हु विल बी डूइंग ऑल द वर्क इन द फेवर ऑफ द ओनर. सैलरी बढ़ेगी लेकिन सिर्फ उसी की बढ़ेगी जो कि ओनर, बैंक के जो ओनर्स होंगे उनके फेवर में काम करेंगे. मतलब उनकी सैलरीज पे डेफिनेटली इंक्रीमेंट लगेगा लेकिन उनकी सैलरीज पे इंक्रीमेंट नहीं लगेगा जो किसी और के फेवर में या किसी जनरल पब्लिक के फेवर में मैक्सिमम वर्क कर रहे होंगे. देन ब्रिंग योर ओन मैन कल्चर. इट मे बी पॉसिबल कि प्राइवेट बैंक्स अपने लोगों को ही जॉब पे रखेंगे या उन लोगों को जो कि उनके फेवर में काम करें उनको ही एम्प्लॉय करेंगे. तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है. देन इट मे ऑल्सो बी सेड दैट फैंसी डेजिग्नेशन लाइक वाइस प्रेसिडेंट, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट विल बी गिवन टू 30 years old. मतलब बहुत फैंसी डेजिग्नेशंस लोगों को दे दिए जाएंगे जिसके कारण क्या होगा कि लोगों का उस एज में तो मोरल बूस्ट होगा, दे विल डेफिनेटली डू अ बेटर जॉब. बट लेटर ऑन व्हेन दे रीचेस टू द एज ऑफ 45 और 50 तो उस समय वो उतना अच्छा काम ना कर पाएँ या इट मे बी पॉसिबल कि उस समय उनकी जो इफ़िशियंसी होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी, तो दे आर नॉट बिकम यूजफुल फॉर द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड दे विल डेफिनेटली बी किक्ड आउट बाय द बैंकिंग
peoples. Now age discrimination exists in private bank. हम ये देखते हैं कि प्राइवेट बैंक में एक एज डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जो यंग लोग हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से होती है, एज वेल एज जिनकी थोड़ी एज हो जाती है उनको वो लोग एम्प्लॉय नहीं करते हैं. तो दीज ऑल थिंग्स मे बी पॉसिबल, may happen after privatization of banks. मीन्स अगर गवर्नमेंट स्टिल प्राइवेटाइजेशन पे जा रही है तो गवर्नमेंट को इन सारे पॉइंट्स को डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए, और जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको जो भी बेनिफिट्स अभी मिल रहे हैं उन बेनिफिट्स को भी कंटिन्यूसली ध्यान में रखना चाहिए. उसके बाद ही गवर्नमेंट को प्राइवेटाइजेशन का डिसीजन लेना चाहिए. स्टिल अगर गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन के लिए जाती है तो there are some points that is very important, and if the government is focusing on all these points also तो may be possible कि प्राइवेटाइजेशन आने वाले टाइम में उतना बुरा इफ़ेक्ट ना डाले जितना कि लोगों ने एक्सपेक्ट करके रखा है. इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें फर्स्ट है कॉरपोरेट्स आर अलाउड और नॉट. गवर्नमेंट को सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा वो कॉरपोरेट्स को अलाउ करेगी या नहीं. Then second one is non-banking financial institutions are allowed or not. Means non-banking financial institutions, corporates, इनमें से किसको अलाउ करना चाहिए और क्यों अलाउ करना चाहिए. Means there is a solid reason behind the permission given by the government for purchasing the share of PSU banks. It should be ensured that the corporate should have that much fund with them to invest or buy share of PSU banks. मतलब गवर्नमेंट को ये क्लियरली इंश्योर करना चाहिए कि जो भी कॉरपोरेट या जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन PSU के शेयर्स को परचेज करने जा रही है, दे विल बाय द शेयर्स फ्रॉम देयर ओन फंड्स. मतलब ऐसा ना हो कि वो लोग किसी दूसरे बैंक से लोन लेकर के उसके बाद इस PSU बैंक के शेयर्स को बाय करें. अगर इस तरह के डिसीजंस या इस तरीके के एक्शंस होंगे तो इट में डेफिनेटली कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत मिक्सअप हो जाएंगी और बहुत क्लियरिटी के साथ हमारे प्राइवेटाइजेशन का जो भी गवर्नमेंट ने एम लिया हुआ है वो कभी भी क्लियर होकर के बाहर नहीं आ पाएगा. इफ़ वी कंसिडर फ्यूचर देन सिंगल यूनिट विल आल्सो अफेक्ट एंड देयर इज़ नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट. अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो कोई भी अगर एक एंटिटी के हाथ में, कोई भी अगर एक लेंडर के हाथ में बैंकिंग जैसी संस्था को हैंड ओवर कर दिया जाएगा तो इट में डेफिनेटली अफेक्ट द इकोनॉमी एज अ होल. तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को अपने आप को प्रिपेयर करके रखना चाहिए, बिकॉज बैंकिंग इज़ एक्चुअली अ वेरी different and very special unit in the country and it has the deposit of general public. जो हमारी जमा पूंजी होती है वो हम बैंक में रखते हैं, तो चूंकि उसने किसी और की सेविंग को होल्ड करके रखा है और उस सेविंग को कहीं और यूटिलाइज करके वो उससे बेनिफिट कमा रहा है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को इसके बारे में अगेन सोचना चाहिए. स्टिल द प्राइवेटाइजेशन इज ऑल्सो the whim of the Prime Minister, as well as nationalization is also the whim of Prime Minister. This is also being said by our Reddy sir. So we have to wait and watch for the decision that is being given by the government in the monsoon session regarding the privatization. Still, please write your comments related with nationalization as well as privatization, and if you like the contents please subscribe my channel. Thank you so much for watching.